Hello everyone, I am Priyanshu. Welcome to our current affairs related discussion program in which we undertake important current affairs news which can be important for UPSC civil services examination or state PCS examination or any other competitive exam. So the topic for today is Indian Ocean Rim Association IORA. IORA is an important regional grouping, and as we know that we have international relations related topics in general studies paper 2 of UPSC civil services main exam, general studies paper 2. ओके, सो वाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक, हम लोगों ने इस टॉपिक को क्यों लिया है? तो अभी हाल फिलहाल में 9 से 11 अक्टूबर के बीच श्रीलंका में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी. सो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, उसकी बैठक कोलंबो में हुई. और चूंकि हमको सिलेबस में रीजनल ग्रुपिंग्स पढ़नी है, एसोसिएशंस और एग्रीमेंट्स विच में बी इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज इंटरेस्ट, वो हमारे जीएस पेपर 2 का हिस्सा है. सो इट वाज इन न्यूज as the Council of Ministers was held in Colombo on October 11th, between 9 to 11 October. Okay. Now, coming to the important point, how it can be related with the GS paper 2 main syllabus. Okay. As we know that international relation is a part of GS paper 2 main syllabus, so it can be associated with two topics, that is India and its neighborhood relations. We know that India has several maritime neighbors along the Indian Ocean region, several maritime neighbors, oceanic neighbors. So it relates to India and its neighborhood relation, भारत और उसके पड़ोस संबंध. And the second is bilateral, regional and global groupings. So IORA is a regional grouping. यह एक क्षेत्रीय समूह है, regional grouping and agreements involving India and or affecting India's interest. ओके, सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IORA, भारत IORA का एक सदस्य देश है. इसलिए इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, अकॉर्डिंग टू these 2 points, it is important for us to study this particular news article. Okay, so this type of establishing relation with topics of the syllabus is very important. आप जब भी पढ़ाई करते हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की या इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो आपको अपने सिलेबस के बिंदुओं से यू हैव टू रिलेट the current affairs news with the specific topic of the syllabus. तो इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है. ओके, नाउ सी, बिफोर गोइंग ऑन टू द IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन समूह के बारे में बात करने से पहले हम पहले ये जानने का प्रयास करें कि इंडियन ओशियन रीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है. वाई इज द इंडियन ओशियन रीजन इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड. आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज में, इंडियन ओशियन रीजन इज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड. द एरिया मार्क्ड बाय रेड कलर, ये जो एरिया आपको लाल कलर में दिख रहा है, दिस इज द इंडियन ओशियन रीजन. आप अगर देखें तो इंडियन ओशियन का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, दैट इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सॉरी, द वेस्टर्न फ्लैंक इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, द ईस्टर्न फ्लैंक इज द ऑस्ट्रेलिया, द साउथ ईस्ट एशिया, एंड द नदर्न borders you can say of the Indian Ocean is the South Asian region, and on the south is the Southern Ocean. So this is the geographical location or the geographical placement of the Indian Ocean region. ये हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति है या अवस्थिति है. Okay. So can you see from the diagram the importance of the region from the perspective of geopolitics and strategy? भू राजनीति को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर का अपना एक यूनिक पोजीशन है. हाउ? वी नो दैट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज यूरोप द ट्रेड रूट्स पास थ्रू द इंडियन ओशियन रीजन टू एंड फ्रो both way. Okay, earlier the traders had to take the route of Cape of Good Hope, but after the establishment or the construction of the Suez Canal, the route can be shortened and through the Indian Ocean ग्लोबल ट्रेड कैन बी कंडक्टेड. सो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो हिंद महासागर के माध्यम से, हिंद महासागर के रास्ते से काफी व्यापक पैमाने पर होता है. इसका सामरिक महत्व इस तरीके से है कि वैश्विक जो भू राजनीति है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एज you can see that a number of powerful nations are situated along the Indian Ocean. Second thing is that Indian Ocean, it also holds immense economic reserves. It has huge economic potential in terms of maritime resources, marine resources. So all these factors make the Indian Ocean region
and a significant area in terms of strategy, in terms of geopolitics and for global economy. If we talk about data and statistics, अगर हम आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों से क्या होते हैं, आंकड़ों से जो है वो हमारे कंसेप्ट्स और जो हमारी बातें हैं वो पुष्ट हो जाती हैं. So if we have a look upon the important statistics of the region, so at least 1/3 of the global population resides along the Indian Ocean region. हिंद महासागर के जो तटीय देश हैं उसमें कम से कम पूरे विश्व की 1/3 जनसंख्या निवास करती है. That is around 2.6 billion people. Okay, so it is impacting lives of 2.6 billion people. That's why the ocean has immense importance. First thing. The second thing is through the region 80% of the global oil trade takes place. You know that oil is the basic fuel which drives the global economy. So 80% of the global oil trade takes place through the Indian Ocean region. 50% of the world's containerized cargo, so cargo which is shipped through containers, okay, so 50%, half of the world's containerized cargo, it is shipped through the Indian Ocean region. तो आप इसके व्यापार के क्षेत्र में महत्व को इन तथ्यों से, इन डेटा से आप समझ सकते हैं. Now coming to an another aspect of global trade, so 33% of the bulk cargo, पूरे वैश्विक व्यापार का 33% बल्क कार्गो जो है वह 1/3 बल्क कार्गो वह हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है. Now if you see that the volume of trade which takes place in the Indian Ocean region, so if you combine together the goods and services, it amounts to $1 trillion. $1 trillion. और अगर हम इंट्रा IORA ट्रेड की बात करें, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्षेत्र में जो इन सदस्य देशों के बीच में व्यापार होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें, सो इट अमाउंट्स टू अबाउट $800 billion. So these data sets highlight the importance and significance of the Indian Ocean region as a strategic area, as an area of huge economic potential. Okay, that's why this region is important for us, and due to this it is important to have regional groupings which may address shared concerns, which may develop a common joint roadmap for the future for the littoral nations or the nations which lie along the Indian Ocean region. Okay. Now having understood this, we are coming to the genesis or the origin of the IORA. Okay. So how did the idea of IORA generated? It is important to note that हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला 1995 में 1995 में वे भारत आए थे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में. तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में रिपब्लिक डे फंक्शंस में आमंत्रित किया था. सो 1995 में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि यह इतिहास की और भूगोल की एक प्राकृतिक मांग है. It is, if we read his quote, so the natural urge of the facts of history and geography should broaden itself. He said that the natural urge of the facts of history and geography should broaden itself to include the concept of an Indian Ocean Rim for socio-economic cooperation. What do you mean by rim? Rim means the periphery, the outer side of any arrangement. हम किसको कहते हैं rim? मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इसका रिम क्या होगा, इसकी जो पेरिफेरी होगी उसको हम रिम कहेंगे, इसकी पेरिफेरी को हम रिम कहेंगे. तो नेल्सन मंडेला ने यही बात की कि जो इंडियन ओशियन रीजन है इसका जो इतिहास रहा है, इसका जो भूगोल रहा है, उसकी एक प्राकृतिक मांग है और हमें उस एक नेचुरल अर्ज को व्यापक बनाते हुए, ब्रोडेन करते हुए, उसमें एक इंडियन ओशियन रिम जो कि क्षेत्रीय सामाजिक और आर्थिक सहयोग के लिए कार्य करे, वैसे एक इंडियन ओशियन रिम को कंसेप्चुअलाइज करना होगा. ये बात उन्होंने 1995 में जब वो भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी और इसी विजन से IORA का ओरिजिन होता है. इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की ओरिजिन यहीं से होती. नाउ सी दैट after he underlined his vision in 1995, so the very same year in March 1995, this rationale and this vision
it underpinned the Indian Ocean Rim Initiative. इस पहल की घोषणा की जाती है इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव, जो कि 2 साल बाद एक एसोसिएशन के रूप में, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में स्थापित होता है. एंड एट दैट टाइम इट वाज नोन एज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IORARC. ओके, आपने इसकी ओरिजिन के ट्रेल को समझ लिया होगा. In 1995, Nelson Mandela came to India and he laid down the vision of a broadened regional cooperation initiative for the Indian Ocean region. उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक सहयोग की बात की. उसी भावना पर आधारित होकर, based upon the very same vision, in 1995 March, Indian Ocean Rim Initiative was considered, which after 2 years, in 1997, took the form of an association. That was Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. So the organization then in 1997 was known as IORARC, Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. In the year 1997 it was established. Okay, so this is the historical genesis and origin of IORA. Okay, now coming to the organization. So when we study any regional grouping, global grouping or bilateral arrangement or agreement, we must know what is the organizational setup of the body. तो अगर हम IORA की बात करें तो इसका संगठन किस तरीके का है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. यह एक अंतः सरकारी संगठन है. जब हम इंटर गवर्नमेंटल कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि इसके जो मेंबर्स हैं वे केवल गवर्नमेंट्स होती हैं. सॉवरिन स्टेट्स, sovereign nation states which lie around the Indian Ocean region are members of this organization. So it is an intergovernmental organization जिसके सदस्य सरकारें होती हैं. इस चीज को समझ लेना है. Okay, as we were discussing that it was established in March 1997. इसकी स्थापना मार्च 1997 में हुई थी. Okay, and इसका लक्ष्य क्या है इस संगठन का? So it aims to strengthen regional cooperation एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए कार्य करता है और सतत विकास के लिए कार्य करता है. किस क्षेत्र में काम करता है? इसके नाम से ही स्पष्ट है, इंडियन ओशियन रीजन में, हिंद महासागर क्षेत्र में. सो इट वर्क्स फॉर स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द IOR, दैट इज द इंडियन ओशियन रीजन. ओके, नाउ विच आर द हाउ मेनी मेंबर्स आर एट प्रेजेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. वर्तमान में इस संगठन के कितने सदस्य हैं? तो इस सब तरीके की जो जानकारी है, यह सब जानकारियां आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं. इन प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो दीज बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट. सो क्वेश्चंस में बी आस्क्ड दैट which among the following are members of IORA. So these information you must be mindful of. At present there are 23 members and 11 dialogue partners. Okay, तो अभी वर्तमान में इस संगठन के, इस समूह के 23 सदस्य हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं. डायलॉग पार्टनर्स क्या होता है? सो डायलॉग पार्टनर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन आर दोज नॉन मेंबर स्टेट्स. ये नॉन मेंबर्स होते हैं, ये सदस्य नहीं होते, नॉन मेंबर्स होते हैं, बट दे स्टिल हैव अ सिग्निफिकेंट, दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द functioning and operation of the organization and they contribute in specific areas. So dialogue partners वे होते हैं जिनका भी उस संगठन में important stake होता है, उसके functioning में stake होता है, उनके अपने concerns होते हैं और वह साथ मिलकर collaborate करते हैं specific areas में. Though they are not members but they have significant role to play in the organization. So at present there are 23 member states and 11 dialogue partners. Now which nations are the members? So as we discussed that there are 23 members, 23 सदस्य देश हैं. अगर हम एक बार ब्रीफ में सबके नामों का उल्लेख कर लें, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस. It is important to note down India is also a member of IORA, being an important nation in the Indian Ocean region. Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapore, Somalia, South Africa,
श्रीलंका, तंजानिया, Thailand, UAE and Yemen. So these are the 23 nations, and you can develop your ways to remember the names of these 23 nations in case a question for the members of the organization is asked in the prelims. Okay? तो आप ये देखें कि भारत के अगर पड़ोसी देशों की हम बात करें तो बांग्लादेश भी है इस समूह में, भारत है, ईरान चूंकि पश्चिम एशिया में हमारा एक एक्सटेंडेड नेबर है, और मालदीव्स जो कि सार्क का भी सदस्य देश है। इसी तरीके से हम देखें तो श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड इसका सदस्य है, और तो हम देखते हैं कि भारत के कई पड़ोसी देश भी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं। इसलिए इस तरीके के संगठनों के बारे में पढ़ना, स्टडिंग अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे नेबरहुड रिलेशंस को जानने के बारे में। इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर इंडिया नेबरहुड रिलेशंस, स्टडिंग दीज एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस बिकम इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये इसके 23 सदस्य देश हैं। डायलॉग पार्टनर्स की अगर हम बात करें, सो मेजर नेशंस, पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विच हैव अ सिग्निफिकेंट से इन द ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज डायलॉग पार्टनर्स। वैसे शक्तिशाली देश इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो चाइना, रसिया, यूके, यूएस, जर्मनी, आप अगर देखें इजिप्ट जैसा देश, इटली इन यूरोप, Saudi Arabia, South Korea and Turkey. So these 11 nations are associated with this organization as dialogue partners. You can see the profile of the nations. They are very powerful nations like China, Russia, UK, US, Japan, South Korea. So major powerful nations of almost every continent are part of this association as dialogue partners. Okay. Now coming to the structure. What is the structure of IORA and how does it functions? The structure of IORA and how does it function? See, for any association, किसी भी संगठन की एक जो है शीर्षस्थ निकाय होती है, एपेक्स बॉडी होती है। जैसा हम लोगों ने बात किया, यह संगठन इसलिए चर्चा में थी क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है सदस्य राष्ट्रों की, ठीक है। तो IORA की अगर हम बात करें तो इसकी एपेक्स बॉडी क्या है, वही काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इसकी एपेक्स बॉडी है, जिसमें कि विदेश मंत्रियों की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, हेल्ड एनुअली। ओके, और अगर हम पास्ट में इसके चेयर की बात करें, कौन अध्यक्ष रहा इस संगठन का, तो 2019 से लेकर 21 तक UAE, संयुक्त अरब अमीरात इसका अध्यक्ष रहा। उसके बाद इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश के पास आ गई। बांग्लादेश 2021 से लेकर 23 तक इसका अध्यक्ष रहा, और 2023 से लेकर नवंबर 2023 से लेकर 2025 तक इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पास रहेगी, जो कि अभी कोलंबो मीटिंग में हस्तांतरित हुई है, सो ट्रांसफर हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता भी अभी जो हाल फिलहाल में भारत के ही पड़ोसी देशों के पास रही है, और भारत अभी वर्तमान में इसका वाइस चेयर है। प्रेजेंटली इंडिया इज द वाइस चेयर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, या आप उपाध्यक्ष कह सकते हैं। ओके, सो द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इट फॉर्म्स अ ट्रायोका, इट हैज ए ट्रायोका। ट्रायोका किसको बोलते हैं? ट्रायोका, ट्रायोका में जो पास्ट चेयर है, यानी जो पिछला अध्यक्ष है, प्रेजेंट चेयर और वाइस चेयर, प्रेजेंट चेयर और वाइस चेयर, ये तीनों मिलाकर IORA के ट्राइका को फॉर्म करते हैं। तो पास्ट चेयर जैसा हमने बात की, संयुक्त पास्ट चेयर जो है वो बांग्लादेश रहा 2021 से 23 के बीच में। अगर हम वर्तमान इसके अध्यक्ष की बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका 2023 से 25 तक, और वर्तमान जो वाइस चेयर है वो भारत है। ओके, सो presently the troika of the Indian Ocean Rim Association is with the South Asian countries, past chair being Bangladesh, present chair being Sri Lanka and the present vice chair being India। तो जो इसकी ट्रायोका है वो अभी दक्षिण एशियाई देशों के ही पास है। ओके, स्ट्रक्चर में आगे बढ़ें तो कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स
जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी समिति होती है जो कि वर्ष में 2 बार मिलती है। इट मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस एनुअली। इसका कार्य ये होता है कि जो COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो फैसले किए गए, जो वर्किंग ग्रुप्स में फैसले किए जाते हैं, जो डिफरेंट इसके वर्किंग ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, उसमें जो फैसले किए जाते हैं, उसमें जो चर्चाएं होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको असल में इम्प्लीमेंट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स का काम है जो कि IORA स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तो एपेक्स बॉडी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। साथ ही साथ आपने अध्यक्षता के बारे में भी जाना। ये इस संगठन के संरचना की बात थी। आगे बढ़ें, इसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सो दीज क्वेश्चंस मे अपीयर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन whether in UPSC civil service exam or state PCS or another competitive examinations। तो IORA का सचिवालय मॉरिशस में है, एबीन सिटी सेंटर, ये साइबर सिटी सेंटर है एबीन का, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। सो मॉरिशस का एक शहर एबीन, वहाँ के साइबर सिटी में IORA का सचिवालय स्थित है। अब इस सेक्रेटेरिएट का कार्य क्या है? सचिवालय का जो यूजुअली वर्क होता है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं COM में या फिर कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा, तो सबसे पहले ये संगठन के काम को प्रबंधित करता है। इट मैनेजेस द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट कोऑर्डिनेट्स सर्विसेज एंड मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फोरम्स पर पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। साथ ही साथ जो भी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स अडॉप्ट किए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उनको भी ये प्रोग्रेस और मॉनिटर करता है। सो द बेसिक वर्क्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट आर टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द पॉलिसी डिसीजंस, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द वेरियस फोरम्स एंड बॉडीज ऑफ द IORA। So this was about the secretariat. Now coming to the priority areas. See, any organization has its own डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड प्रायोरिटी एरियाज। कोई भी संगठन है तो उसका अपना एक लक्षित कार्य क्षेत्र होता है, ओके, टारगेटेड एरियाज होते हैं काम करने के। तो आइए देखते हैं कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के प्रायोरिटी एरियाज क्या है। सबसे पहले, चूंकि यह मैरीटाइम सेक्टर का एक एसोसिएशन है, इसलिए इसमें मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा है वह इसकी पहली प्राथमिकता है, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम जानते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन में कई तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, कई तरीके के जो है स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हैं, टेरर थ्रेट्स हैं, पायरेसी है। सो ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ security threats are persistent in the Indian Ocean region. So the first thing to enhance regional cooperation is to strengthen the safety segment. Okay, so the first thing is maritime safety and security. Second thing is, we just talked about the trade and the economic potential of the Indian Ocean region. हमने बात की अभी कि व्यापार और आर्थिक जो महत्व है, जो पोटेंशियल है इंडियन ओशियन रीजन का, वो क्या है। So the second priority area is trade and investment facilitation. If the area has huge economic potential, so it must be facilitated by enhancing or enlarging the intra-IORA cooperation in financial and economic areas. Okay. Now, the third thing is managing the maritime resources. We know that fishery, मत्स्य क्षेत्र जो है वह एक important समुद्री संसाधन है. So managing the fishery sector, it has huge fishery potential. Okay, so managing that segment is also another priority area. The fourth one is disaster risk management, आपदा प्रबंधन. Okay, so the disaster risk management, as we have seen that in the 2004 tsunami also in the Indian Ocean region, there were serious devastations in many nations of Indian Ocean region, including India, Indonesia, Sri Lanka. तो उसी समय ये सोचा गया कि इस क्षेत्र में जो भी उभरने वाली पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, जो भी उभरने वाली जो और नेचुरल डिजास्टर्स हैं, हजार्ड्स हैं, उनको मिटिगेट करना इस क्षेत्र के लिए काफ़ी जरूरी है और उसके लिए क्षेत्रीय देशों के बीच में सहयोग होना अति आवश्यक है. ओके, सो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. द नेक्स्ट थिंग इज एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी
to strengthen cooperation, exchanges, collaboration in areas of academics, science and technology. So it is another priority area for IORA. Another thing is tourism and cultural exchanges. We know that the region covers an expansive geography. Many nations are located along the coast of the Indian Ocean. Due to this, at the same time, there are nations like India, Australia, many African nations which has huge cultural diversity. Nations like South Africa, so huge cultural diversity which can be tapped for their tourism potential. Okay, तो वहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं काफी अधिक हैं. यह भी एक प्रायोरिटी एरिया है. एंड द सेवंथ वन इज जेंडर एम्पावरमेंट. अब आप देखेंगे कि इंडियन ओशियन रीजन जो है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन खासकर साउथ हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध जो पृथ्वी का है. एंड इट इज सेड दैट द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ रीजन ऑफ लेसर डेवलपमेंट, particularly in terms of women development when you compare with the northern hemisphere of the world. जब आप उत्तरी गोलार्ध से तुलना करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में विकास का जो स्तर है, खासकर जो महिला विकास का स्तर है, वो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तुलना में कम है. दैट इज वाई जेंडर एम्पावरमेंट, या अगर हम कहें हिंदी में कि लैंगिक सशक्तिकरण, इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया, द सेवंथ प्रायोरिटी एरिया फॉर IORA. Fine. Now coming to the significance for India. भारत के लिए इस संगठन का क्या महत्व है? So questions in main examination in UPSC or state PCS can be directly asked that what is the significance of Indian Ocean region or IORA for India. पहली चीज अभी हम लोगों ने देखा कि इंडियन ओशियन रीजन में स्ट्रैटेजिक कॉमनैलिटी है, स्ट्रैटेजिक उसका अपना पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, कल्चरल पोटेंशियल है. फाइन. सो रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशियन आइडेंटिटी, अगर हमें इस कॉमन आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करना है, अफर्म करना है, फॉर दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन अमंग द नेशंस ऑफ द रीजन. दैट इज वाई द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ IORA, जो पहला इसका महत्व है कि हिंद महासागर की पहचान को रीइंफोर्स करना, स्थापित करना और मजबूत बनाना, ये इसका पहला सिग्निफिकेंस है. अगर हम बात करें तो अभी इसी महीने जो कोलंबो में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसके बैनर में थीम जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो यही था, रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशियन आइडेंटिटी. और हम जैसे देखें कि भारत के लिए महत्व इसका स्ट्रैटेजिक और डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से है, तो चीन अपनी उपस्थिति को लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ाता जा रहा है, गिवन द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द IOR. अभी हाल फिलहाल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी और सबमरीन्स भी डिप्लॉय किए हैं चाइना ने. सो द प्रेजेंस ऑफ चाइना, द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू मैरीटाइम स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन, एंड दैट इज वाई organizations like IORA, they become important for India and its neighbors. As we were talking previously that Sri Lanka has taken charge as chair from Bangladesh. So from 2021 to 23, Bangladesh was the chair of the organization. So Sri Lanka took over as chair, and at present India is the vice chair. So troika of IORA is within the South Asian region. That's why the policy decisions, so India and the South Asian nations are in a better position to create policies and implement them depending upon their needs through the IORA platform. That is why this association is important or significant for India. Now when it comes to regional cooperation, particularly in the South Asian region, जब दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है, या अगर आप देखें जो लार्जर एशियन रीजन है उसमें जब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है, तो भारत पाकिस्तान के जो संबंध है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, दे कम एज अ हर्डल. एग्जांपल ऑफ दिस इज द सार्क ऑर्गेनाइजेशन. सार्क में हमने देखा कि 2014 में काठमांडू की बैठक के बाद से कोई बैठक ही आयोजित नहीं हो पाई. सो दीज इम्पेडिमेंट्स, दे आर सीरियस चैलेंज टू regional integration when it comes to India Pakistan bilateral relations. But when you see that under IORA, Indian Ocean Rim Association, so its membership is based upon consensus. This again is an important point to note from prelims perspective. अगर आप prelims के point of view से देखें तो यह जानकारी भी महत्वपूर्ण है
कि IORA की जो सदस्यता है यह कंसेंसस पर, सर्वसम्मति पर आधारित है। जब तक सभी सदस्य देश सहमत नहीं होंगे तब तक किसी नए देश को सदस्य के रूप में इसमें प्रवेश संगठन में नहीं मिलेगा। तो 2001 में ही प्रथम बार फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, पर उसे इस समूह का सदस्य नहीं बनाया गया। किस कारण नहीं बनाया गया? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था। और मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है? हम जानते हैं कि WTO रेजिम के अंतर्गत, विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत सभी देश को एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का दर्जा देना होता है। टर्म के नाम से ऐसा लगता है कि इसमें कोई विशेष सुविधा दी जाती होगी, सम स्पेशल प्रिविलेज इसमें दिया जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। इस टर्म का अर्थ इतना ही है कि कोई एक देश अपने किसी ट्रेडिंग पार्टनर के लिए जो सुविधाएं देता है उसे अन्य सभी देशों को, अन्य सभी WTO सदस्यों को वही सुविधाएं देनी होंगी। जो भी टैरिफ्स होंगे, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज होंगी, वो सभी एक समान होंगी। ठीक है, तो किसी के प्रति विशेष प्रेफरेंस नहीं होगा। In fact, that all nations will be favored equally. So this is the meaning of the term most favored nation, that a trading nation will not discriminate among WTO nations or WTO members. Okay, तो पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया। भारत ने हालांकि पाकिस्तान को 1996 में ही MFN का दर्जा दिया था, जो वापस 2019 के फरवरी में पुलवामा हमले के बाद भारत ने MFN का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया। हालांकि हम फिर से अगर बात करें तो IORA में पाकिस्तान सदस्य नहीं है, और जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल रिलेशंस में जो टकराव की स्थिति आती है और उसके कारण क्षेत्रीय सामूहिक संगठनों के काम करने के तरीकों को वे प्रभावित हो जाते हैं। सो दैट थिंग इट डज नॉट अराइज इन द IORA, क्योंकि इसका पाकिस्तान सदस्य नहीं है। ओके, सो इस कारण से इट बिकम्स अ लेस कंटेंटियस स्पेस फॉर इंडिया एज वेल एज अदर नेबर्स टू वर्क फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंपेयर टू अदर रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक SAARC और SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच हैज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एज मेंबर्स। तो अगर आपसे मेंस में अगर ये पूछ दिया जाए कि IOR का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप दूसरे ग्रुपिंग से भी कंपेयर करके बता सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आपके आंसर्स जो हैं कंपैरेटिव होने चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए और एनालिटिकल होने चाहिए, उसमें विश्लेषण होना चाहिए। तो हम किस प्रकार से इसके महत्व को जता सकते हैं कि चूंकि जो अन्य क्षेत्रीय समूह हैं, संगठन हैं, जैसे SCO है, SAARC है, तो उसमें भारत, पाकिस्तान सबकी उपस्थिति, चीन की उपस्थिति, चीन हालांकि सदस्य नहीं है IOR का, डायलॉग पार्टनर है, पर जैसे SCO में, तो इसमें क्या होता है कि भारत, पाकिस्तान, चीन की आपसी राजनीति के कारण, द्विपक्षीय संबंधों में जो करवाहट है उसके कारण क्षेत्रीय सहयोग स्थापित होने में कठिनाई आती है। तो वैसी बात IORA के अंतर्गत नहीं है, और ये लेस कंटेंटियस स्पेस है भारत और इसके पड़ोसियों के लिए, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नाउ कमिंग टू फर्दर सिग्निफिकेंस, जैसा हम लोगों ने बात किया कि चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन रीजन। ओके, इट हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स लाइक BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने शुरू की है। उसी तरीके से चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम स्टार्ट किया है चाइना ने, विच इज इट्स लेटेस्ट इनिशिएटिव फॉर द IOR। ओके, एंड दीज इनिशिएटिव्स एक्सक्लूड इंडिया। हम जानते हैं कि भारत BRI का भी सदस्य नहीं है, भारत चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम का भी सदस्य नहीं है। अगर हम इंडियन ओशियन रीजन फोरम की बात करें तो फर्स्ट चाइना एंड इंडियन ओशियन रीजन फोरम वाज हेल्ड लास्ट ईयर इन कुनमिंग, चाइना। ओके, so it underlies Beijing's growing strategic interest in the region, where its economic footprint has been deepening. As we were discussing, that the economic footprint of China in terms of economic cooperations and providing loans for infrastructure projects to neighbors of India and the other Indian Ocean region nations under its BRI initiative. So China is increasingly expanding its economic footprint in the region, which is a direct threat for India. Okay. At the same time, China is trying to pull in its sphere of influence India's neighbors through groupings, through initiatives like BRI and China Indian Ocean Region Forum. So China is trying to bring India's neighbors in under its ambit of influence, and this will further weaken or reduce India's influence on its neighbors. So that is why
organizations like IORA, they become important for or significant for India, and they provide a safe space. So these organizations, they provide a safe space for India and other countries so that they can work for regional integration without concerns for big power rivalries. Big power rivalries, अगर हम देखें भारत और चीन दोनों दक्षिण एशिया में या एशिया महादेश में बड़ी शक्तियां हैं, दे आर बिग पावर्स, और इनके बीच में जब प्रतिद्वंदिता होती है, जब राइवलरी कंपटीशन होता है, तो उसका असर क्षेत्र के और दूसरे छोटे देशों पर पड़ता है या अन्य देशों पर पड़ता है। अब लेकिन अगर IORA में चाइना और पाकिस्तान जैसे राइवल्स इंडिया के नहीं हैं, कम से कम सदस्य के रूप में नहीं है, चीन डायलॉग पार्टनर है, तो यह भारत को और अन्य देशों को बिना बिग पावर राइवलरी की चिंता किए हुए क्षेत्रीय सहयोग के लिए आपस में कार्य करने के लिए अधिक स्थान प्रदान करता है, मोर स्पेस प्रोवाइड कराता है। एट द सेम टाइम विद इन द IORA, सो देयर इज facility for special funds also, particularly focusing on climate change. Okay, we know that the challenge of climate change, the threat of climate change has become real and its effects has been increasingly felt across the world. जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज वर्तमान में एक वैश्विक चुनौती बनकर उभरा है और इसका प्रभाव विश्व के हर कोने में अब दिखना शुरू हो गया है। तो IORA के अंतर्गत एक स्पेशल फंड की व्यवस्था होती है, स्पेशल फंड इन एडिशन, जिसके अंतर्गत सदस्य देशों को प्रोजेक्ट ग्रांट दिए जाते हैं जिसका फोकस जलवायु परिवर्तन पर अधिक होता है। तो इसका महत्व इस तरीके से भी है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कैन बी फंडेड थ्रू these organizations, and as the entire region is vulnerable to climate change, so these type of organizations become important for India and its neighbors. And as we were talking about freedom of navigation in the sea, freedom of navigation in the sea and countering organized crimes like piracy, it becomes important for building security cooperation among the nations of Indian Ocean region. हम यह जानते हैं कि चीन ने कई बार, चाहे वो ईस्ट चाइना सी की बात हो, साउथ चाइना सी की बात हो, तो उसने अपने मैरीटाइम नेबर्स के जो समुद्री पड़ोसी हैं उनके समुद्री सीमाओं का उल्लंघन किया है। इट हैज वायलेटेड द सॉवरेनिटी, द मैरीटाइम सॉवरेनिटी ऑफ इट्स नेबर्स लाइक फिलीपींस, वियतनाम। सो इन देशों के इट हैज ऑल्सो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स विद जापान। ओके, सो भारत का और जो हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य देश हैं उनका मानना है, इंडियन ओशन रीजन नेशंस का, कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओपन एंड फ्री सीज। जो समुद्री इलाका है, समुद्री क्षेत्र है, वो स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, बिना किसी एक देश के प्रभाव के। ओके, तो इन बिंदुओं के को ध्यान में रखते हुए IORA भारत के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है और इसके पड़ोसियों के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। नाउ सी दैट in the just concluded meeting, Council of Ministers meeting this month, India was represented by its Foreign Minister, Mr. S. Jaishankar. So India's Foreign Minister, he also highlighted these aspects, saying that India wants to maintain the Indian Ocean as a free, open and inclusive space. There should be no restriction of movement, no restriction of navigation. At the same time, there should be space for every nation for growth and development in the region. That's why he called for an inclusive space in the Indian Ocean region. At the same time, India highlighted the respect for sovereignty and territorial integrity based on the UN Convention on Law of the Seas. So India said that there are persistent violation of maritime borders by nations like India did not directly name China. These statements they did not directly name China. इन्होंने चीन का सीधा सीधा नाम नहीं लिया, पर जो गतिविधियां चीन की हैं उसी की ओर एक इशारा करते हुए कहा कि हमें अन्य जो सदस्य देश हैं उनके भी संप्रभुता का और उनके भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखना पड़ेगा यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के मद्देनजर। एज वी नो दैट यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज is a UN convention. It was adopted in the year 1982. So India is also a state party to the convention. It has 168 state parties, and question related to UN clause was also asked in 2002 prelims. 2022 UPSC prelims exam. UPSC की prelims परीक्षा में आपसे UN clause के बारे में प्रश्न पूछा गया था
UN क्लॉज के बारे में आपको जानना जरूरी है. If we say that what is this convention, so it defines the rules and laws governing the ocean or the sea, the use of ocean, the use of oceanic resources, what will be the rights of the nations. So ये इन सभी अधिकारों को, इन नियमों को, कानूनों को स्थापित करता है. एंड इट वॉज एडॉप्टेड इन द ईयर 1982. अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो ये कहता है यूएन क्लॉज के अनुसार किसी भी देश के 12 नॉटिकल मील, उसकी जो समुद्री तट है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक उसकी अपनी सॉवरेनिटी होगी, वो उसका अपना क्षेत्र माना जाएगा. अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इट विल बी कंसीडर्ड टू बी, up to 200 nautical miles it will be considered to be the exclusive economic zone of that nation. Okay, exclusive economic zone of the nation. तो आप UN क्लॉज के बारे में और जानकारी आप कलेक्ट करें, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से कि प्री मेंस इंटरव्यू में सीधे सवाल आ सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू इंडिया स्टैंड एट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग, इंडिया ऑल्सो वार्नड ऑफ द डेंजर्स ऑफ हिडन एजेंडाज, unviable projects or unsustainable debt to countries in the Indian Ocean region. India warned that India indirectly referring to China, as we know that China is being involved in debt diplomacy. So the debt trap phenomena under which it funds for infrastructure projects to nations, and in the due course of time such debts become a trap for the nation which is receiving the debt. Okay, so India warned of such unviable projects or unsustainable debts. It also warned of the hidden agenda behind these kind of economic projects. So these were the concerns which India raised at the Council of Ministers meeting this month held in Colombo. Now when we talk about IORA, so there is one important forum. एक इसमें एक important forum है इंडियन ओशियन डायलॉग. इंडियन ओशियन डायलॉग यह एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, यह IORA के अंतर्गत एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है. इसकी शुरुआत 2013 में जब 13वीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, तो ये आइडिया वहां से शुरू हुआ था. 13th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और उसके बाद 2014 में पहली बार इंडियन ओशियन डायलॉग कोची केरला में आयोजित किया गया था. केरल राज्य में कोची शहर में आयोजित किया गया था. और ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का एक टूल है. अब थोड़ा सा इस टर्म को समझ जाएं कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है. देखिए, जब सरकारें आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंगेज करती हैं तो वो नॉर्मल जो फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस होते हैं, फॉरेन रिलेशंस होते हैं, वो होते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. लेकिन जब सरकार और सिविल सोसाइटी, स्कॉलर्स, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट्स और जो साइंटिस्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं दूसरे देशों के, वे जब आपस में इंगेज होते हैं, एक साइड तो सरकार होती है और दूसरी तरफ जो स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फील्ड एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, व्हेन दे इंगेज टुगेदर, दैट इज कॉल्ड ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी. 1.5 इसलिए क्यों, 1 जो है वो गवर्नमेंट का और 0.5 ये जो नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, हु हैव a large experience of working in a field. So this track 1.5 diplomacy, it is implemented under IORA in the form of Indian Ocean Dialogue Initiative. So इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सदस्य देश हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उसके अलावा स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, थिंक टैंक्स होती हैं, सिविल सोसाइटी के सदस्य होते हैं, NGOs और सिविल सोसाइटी संगठन होते हैं. तो यह जो है इंडियन ओशियन डायलॉग, यह एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी एग्जीक्यूट की जाती है. यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था. अब हम देखें कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन को आपको संगठनों को और अन्य समाचार को जोड़कर पढ़ना है. जैसे अभी हम लोगों ने IORA की चर्चा की, तो इससे जुड़ी हुई जो समाचार हाल फिलहाल में आए हैं कि अभी हाल में रिपोर्ट्स आई कि श्रीलंका में एक चाइनीज रिसर्च वेसल, एक चाइनीज अनुसंधान वेसल वहां पर जाने वाला है. अ चाइनीज शिप which is to visit Sri Lanka, and China says that it is a research vessel, but last year also such kind of ship had visited Sri Lanka and India had made objections at that time also. भारत ने तब भी अपने objections raise किए थे due to fears of surveillance.
भारत ने कहा कि यह कोस्टल सर्विलांस के लिए चाइना इस तरीके से अपने शिप्स को श्रीलंका भेजता है. So both India and the United States have raised the matter with Sri Lanka and pointed out their objections. Okay. So now see that how it is important that China's presence is increasing in the Indian Ocean region. China is at the same time trying to bring India's neighbor within its own ambit and sphere of influence. Okay. So in this context we can associate it with the IORA. Second thing is India and Sri Lanka have launched a ferry service recently from Nagapattinam in Tamil Nadu with Kankesanturai, which falls in the northern province of Sri Lanka. So there was a long pending demand. एक फेरी सेवा शुरू करने की मांग कई दिनों से की जा रही थी, कई वर्षों से की जा रही थी, जो कि तमिलनाडु के, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, तमिलनाडु के नागापट्टनम को श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस में स्थित कंकेसंतुरई नाम का एक जगह है, वहां से जोड़ती है. तो अभी हाल ही में दोनों देशों ने इस फेरी सर्विस की शुरुआत की है. अब इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी. IORA का उद्देश्य क्या है कि जो मैरीटाइम नेबर्स हैं इंडियन ओशियन रीजन में, उनके आपस में कनेक्टिविटी बढ़े, संपर्क बढ़े, आपस में मतलब कोऑपरेशन बढ़े. तो इन दोनों समाचारों को भी हम IORA से जोड़ के पढ़ सकते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्कशन इज टू इनलार्ज एंड ब्रोडेन योर एरिया ऑफ थिंकिंग, आपके सोच को और ज़्यादा एक विस्तार देना, और किस तरीके से हम करंट अफेयर्स के न्यूज को अपने परीक्षा के सिलेबस से जोड़ते हुए परीक्षा परक तैयारी कर सकते हैं. सो होप दैट द डिस्कशन इज ऑफ हेल्प टू यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक्स अ लॉट.